وہ چند چیزیں جو نماز میں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں، لہذا بچنا ہی چاہیے کہ ثواب میں کمی نہ ہو۔ مکروہ تنزیہی یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم لوگوں کو نماز میں کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو۔ جیسے نمبر 1 یہ آپ کو بتا دیں کہ مکروہ تنزیہی جو اس میں بیان کیا گیا ہے یہ کتنے ہیں؟ 21 کتنے؟ 21 ہیں۔ اور نمبر 1 سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم کہنا، حدیث میں اسی کو کیا ہے؟ مرغ کی سی کیا ہے؟ پھونک مارنا، یا ہاں اگر وقت تنگ ہے تو ہے، یا ریل چلے جانے کا خوف ہے تو حرج نہیں۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں اس میں کہ سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم پڑھنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا آیا ہے کہ مرغا جیسے چونچ نہیں مارتا ہے اس کھانے کے لیے دانے کو بار بار جلدی تو ایسے چونچ مارنا کیا ہے؟ مارنے والے نمازیوں کو سجدہ یا رکوع میں جو جلدی سجدہ اور رکوع کرتے ہیں منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں مگر حرج ہو کہ ریل جانے کا وقت ہے، اسٹیشن میں ہو، ریل جانے کا وقت ہے تو جلدی میں اس وقت کر سکتی ہو یا کوئی ایسا کام پڑ جائے۔ نمبر 2 کام کاج کے میل کچیل کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یعنی کام کاج والے کپڑے ہیں، یعنی کام کاج والے کپڑے الگ ہیں اور نماز پڑھنے والے کپڑے الگ ہیں، مگر کیا کرتے ہیں کہ وہی کپڑے سے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہی سے کام کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 3 نماز میں انگلیوں پر کیا ہے؟ آیتوں وغیرہ کا گننا، نماز میں یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھے ہیں، اب انگلی وغیرہ سے کیا کر رہے ہیں؟ آیتوں کو گننے کے کتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی نمبر 4 ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، یعنی اب نیت باندھے نماز میں کھڑے ہیں، کوئی آ کر کے سلام کر دیا تو ہاتھ کے اشارے سے کر دیا وعلیکم السلام ایسے، یا کیا کر دیا سر کے اشارے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مکروہ تنزیہی نمبر 5 بلا عذر کیا ہے؟ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی پلتھی مار کر کے جیسے بیٹھتے ہیں دونوں پیروں کو ایسے کر کے، تو بلا عذر یعنی عذر نہیں ہے اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا کرنا شریعت کو پسند نہیں۔ مکروہ تنزیہی نمبر 6 دامن یا آستین سے اپنے کو کیا ہے؟ ہوا پہنچانا، جبکہ 2 ایک بار ہو، اور پنکھا کیا ہے؟ جھلا تو نماز کیا ہے؟ پنکھا جھیلا تو نماز جاتی رہی، یعنی نماز کے حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہیں یا ایسے کھڑے اب گرمی لگی ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ایسے دامن کو ہلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہوا پہنچا رہے ہیں، یا پنکھا ہے پنکھا جھیل رہے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہی چلی جائے گی، نماز ہی ختم ہو جائے گی، نہیں ہوگی، اور یہ مکروہ تنزیہی۔ نمبر 7 کیا ہے؟ انگڑائی لینا اور خواہ مخواہ کیا ہے؟ کھانسنا یا کھکارنا، یعنی انگڑائی لینا زبردستی نہیں آ رہی ہے جب بھی انگڑائی لے رہے ہیں، اور خواہ مخواہ کیا کرنا؟ کھانسنا یا کھکارنا۔ نمبر 8 نماز میں تھوکنا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے کیا کرنا؟ تھوکنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 9 فرض کی ایک رکعت میں کسی سورت یا آیت کو بار بار پڑھنا، یعنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کیا کرنا؟
किसी सूरत को या कोई आयत को बार बार पढ़ना ये क्या है, मकरूह तंज़ीही है। और उज़्र हो तो हर्ज नहीं, यानी उज़्र है, क्या उज़्र हो कि अब कोई याद ही नहीं है, सिर्फ अलहम्दु शरीफ याद है या एक दो सूरत ऐसी याद है कि उसके अलावा कोई नहीं याद है, तो बार बार उसी को नमाज में पढ़ रहा है तो फिर वैसे नमाज हो जाएगी। और अगर बिला उज़्र है और भी सूरतें याद है मगर उसी को बार बार पढ़े जा रहा है, पहली रकात में उसी को पढ़ा, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में पढ़ता चला जा रहा है, तो इस सूरत में क्या है, नमाज क्या है, ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। हाँ, उज़्र से हो तो हर्ज नहीं, यानी भूल कर, उज़्र से हो तो क्या है, अगर उज़्र है तो कोई दिक्कत नहीं, भूले से पढ़कर भूले से पढ़ गई, यानी अगर भूले से पढ़ गई तो भी कोई हर्ज नहीं है। नंबर 10, सजदा को जाते वक्त क्या है, घुटने से पहले हाथ जमीन पर रखना, यूं ही सजदे से उठते वक्त हाथ से पहले घुटने उठा लेना। उज़्र हो तो मकरूह है, उज़्र है जब भी मकरूह है। यानी बाद लोग क्या करते हैं, जब रुकू से उठते हैं तो उठने के बाद ये घुटने को सजदे में या जमीन में ले जाना चाहिए, पहले जमीन में क्या हुक्म है कि घुटने को रखा जाए, मगर बाद लोग क्या करते हैं कि घुटने को ना रख करके सीधा कूद पड़ते हैं, यानी सीधा हाथ जमीन पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मकरूह तंज़ीही है। और बाद लोग क्या करते हैं, उठते समय धक्का मार के उठते हैं, ऐसे करके उछक के और पहले घुटना उठा लेते हैं फिर हाथ उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हाथ उठाओ फिर घुटने में हाथ लगाओ फिर घुटने को जोर दे करके खड़ा हो, ये तरीका है। और अगर बिला उज़्र है जब भी क्या है, मकरूह है। नंबर 11, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुब्हानका अल्लाहुम्मा, यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और सना और आमीन जोर से कहना, यानी ये भी क्या है, मकरूह तंज़ीही है। औज़ु बिल्लाह भी जोर से नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह भी जोर से नहीं पढ़ना है, और सना सुबहान का जो पढ़ते हैं वो सना भी जोर से नहीं पढ़ना है। और जैसे अलहम्दु शरीफ के आखिर में वलद दालिन में पहुँचते हैं तो आमीन कहते हैं, तो ये भी जोर से नहीं कहना है, बल्कि इतनी आवाज़ से कहना है कि खुद सुन लें, अगल बगल वाले ना सुन सकें। तो ये भी अगर कोई कर रहा है जोर से औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है और सना पढ़ रहा है, जोर से आमीन कहता है, तो ये मकरूह तंज़ीही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्की आवाज़ से कहना चाहिए ताकि आप खुद सुन सकें। नंबर 12, बगैर उज़्र दीवार या लाठी वगैरह पर टेक लगाना, यानी क्या करना है, कोई उज़्र नहीं है और दीवार में इसे टेक लगा करके खड़ी हो गई, नमाज पढ़ रही है, या कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, या क्या है कोई डंडे के सहारे नमाज पढ़ रहा है, अगर उज़्र कोई नहीं है तो अगर ऐसा बगैर उज़्र के कर रहा है तो मकरूह तंज़ीही है, इससे बचना चाहिए। नंबर 13, आस्तीन को बिछाकर सजदा करना, आस्तीन को बिछाकर सजदा करना ताकि चेहरे पर खाक ना लगे, और गर्मी से बचने के लिए ऐसा किया तो हर्ज नहीं, यानी गर्मी से बचने के लिए ऐसा किया तो हर्ज नहीं, मगर अगर कोई क्या है आस्तीन को बिछा करके, अब आस्तीन चौड़ी होती है बाज़ लोगों की ज़्यादा, तो क्या करते हैं इसे हाथ बिछा लिया और हाथ बिछा करके इसमें अगर सजदा किया कि सर में मिट्टी ना लगे, इस सूरत ये सोच में रख करके किया तो ऐसा करना क्या है, मकरूह तंज़ीही है। और अगर गर्मी से बचने के लिए किया कि बहुत ज़्यादा बाहर पड़ रहे हैं, पत्थर है, अगर सजदा करेंगे तो पेशानी में कहीं और डट्टा ना पड़ जाए या कोई दिक्कत ना आ जाए, ऐसा किया तो कोई हद नहीं है, कर सकते हैं। मगर अगर किसी ने अपनी पेशानी में मिट्टी लगने से बचने के लिए ऐसा किया तो ऐसा करना शरीयत की तरफ से क्या है, मना है, और ऐसे करने वाले को अगर ऐसा करता है तो मकरूह तंज़ीही करता है, क्या है सवाब उसकी नमाज से कमी हो जाएगी। नंबर 14, दाएं बाएं झुकना, दाएं बाएं झुकना, नमाज पढ़ते में दाएं ऐसे झुक रहा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे झुकना भी मना है। नंबर 15, उठते वक्त आगे पीछे पाँव उठाना, यानी
जब उठते हैं तो बाज़ लोगों को जो ज़्यादा आगे पैर फैला के रखते हैं, उस दिन बताया था कि जो ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो उसके पैर उठने बैठने में ज़रूर हिलेंगे। तो आगे पीछे भी नमाज के हालत में जब रुकू से या सजदे से उठते हैं तो एक पैर पहले उठाया आगे करके, फिर दूसरा पीछे करके, तो ऐसे करना भी क्या है, मना है, मकरूह तंज़ीही है। नंबर 16, मुंह में कोई चीज़ मसलन क्या है, पैसा लिए हुए नमाज पढ़ना, और अगर ऐसी चीज़ें है कि उसके होते हुए क़राअत नहीं कर सकती तो नमाज फासिद हो जाएगी। यानी कोई ऐसी चीज़ है मुंह में जिसको लिए हुए क्या है, नमाज में अगर ऐसी चीज़ है कि उससे क़राअत नहीं कर सकती, नमाज में मुंह में रख लिया और क्या है, क़राअत नहीं कर पा रही है, या आदमी है तो क़राअत नहीं कर पा रहा है, तो इस सूरत में नमाज ही टूट जाएगी। ठीक है, नमाज ही नहीं होगी। नंबर 17, आंखें बंद रखना। हाँ, अगर आंखें बंद कर लेने से नमाज में दिल लगे तो बंद करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अगर आंख लगा करके, आंख बंद करके नमाज पढ़ रहा है कोई, अगर इससे दिल लग रहा है नमाज में कि नहीं मोहम्मद मुझे बहुत नमाज पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अल्लाह की यादें आ रही है, कुरान मजीद की तिलावत करने में अच्छा लग रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर आंखें बंद कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। मगर अगर आंख बंद करके मान लो कि मज़ा नहीं आ रहा है नमाज पढ़ने में, इधर उधर के ख्यालात आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करना मना है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। दिल लगे तो बंद करने में हर्ज नहीं, बल्कि क्या है, बेहतर है कि ऐसे ही आंख बंद करके ही नमाज पढ़ सकते हैं। मगर आंख खोल कर बंद करके अगर इधर उधर की यादें आ रही है, ठीक है, इधर उधर आदमी चला जा रहा है या नमाज को छोड़ करके दूसरे ख्यालात में मुब्तला हो जा रहे हैं, तो नमाज आंख खोल करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। नंबर 18, मस्जिद के छत पर नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह तंज़ीही है। मस्जिद नीचे खाली है और छत के ऊपर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे जमात के साथ हो या ऐसे हो, तो क्या है, मकरूह तंज़ीही है, इससे भी बचना चाहिए। नंबर 19, ऐसी जगह नमाज पढ़ना के दिल बटे, यानी ऐसी जगह नमाज पढ़ना के जिससे क्या हो जाए, दिल बटने लगे, दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे, तो ऐसी जगह पे नमाज पढ़ने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। क्या है, ये भी क्या है, मकरूह तंज़ीही है। नंबर 20, जलती हुई आग नमाजी के सामने होना, जलती हुई आग नमाजी के सामने होना या लालटेन या चिराग वगैरह हो तो कराहियत नहीं, यानी लालटेन चिराग वगैरह हो तो कहीं और दूर रखा होगा तो उससे इंसान के दिल में क्या है, कोई खलल वाक़ई पैदा नहीं होता है। मगर आग जलती हुई सामने हो तो उससे ख्यालात तरह तरह के आ सकते हैं, तो जलती हुई आग के सामने क्या है, नमाज नहीं पढ़नी है, और कोई जगह ऐसा पड़ जाए तो उस जगह नमाज ना पढ़े बल्कि दूसरी जगह पढ़े, और अगर लालटेन वगैरह चिराग वगैरह है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 21, सामने पाखाना वगैरह निजासत होना, यानी सामने नमाज पढ़ रहे हैं कि सामने क्या है, निजासत वगैरह हो, गंदगियाँ वगैरह हो, तो ऐसी सूरत में भी नमाज ऐसी जगह नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये 21 चीज़ें हैं जो मकरूह तंज़ीही है, जो नमाज से बचने के लिए, नमाज में हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा दिल इन मकरूहात तंज़ीहात से बचने के लिए, और इससे बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें कामिल होंगी, मुकम्मल होंगी, और हमारा दिल नमाज में और भी ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ऐसे बयानात सुनने के लिए सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और इंशाअल्लाह अमल भी करने की कोशिश करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।